Hello students and welcome again in the Khoob Sirosta channel, that is How Science Padhe. And now in this video we will talk about the second chapter for class 9 and that is the Is Matter Around Us Pure. मुझे उम्मीद है कि इससे पहले का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब तक सभी लोग जो क्लास 9th में हैं वो ये समझ चुके हैं that what is matter and how we can define the matter. So we will start from the matter, but the chapter name is Matter Around Us Pure. Around us pure. So what do you think? Is matter around us pure? So before we proceed to this chapter, we must know about the matter. So all of you know that what is matter? Matter, it means anything that has mass and can occupies space is called matter. It is very easy. For example, all the things that you are watching or that you are surrounded with the substance, they all are termed to be as matter. So whenever we have to classify the matter, it can be classified into two types. The first one is it is a pure substance and the second one it is a mixture. The second one is the mixture. Whenever we are further classifying the pure substance, it can be classified into the two types. The first one is elements and the second one it is compounds. The second one is the compounds. Okay, moving forward, the elements can be further classified into three types. That one is the metals, non-metals, as well as metalloids. Moving forward, the compounds can be further classified into two types. That is organic compounds as well as inorganic compounds. We will talk one by one. Inorganic compounds. Just have a sketch diagram. Compounds. Okay. The mixture, it is also known as an impure substance. It means the pure substance as well as the impure substance. So we can say the mixture, it is an impure substance. Whenever I am talking about the mixture, it can be further classified into homogeneous mixture. Homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. It's very easy. Okay, the homogeneous mixture can be further classified. It is also known as a solution, or we can say it as a true solution. And the heterogeneous mixture can be further classified into two types. The first one is colloidal, and the next one is suspension. We will talk later on. So this is the sketch diagram for the classification of matter. In the second chapter, you have to learn the pure substance, elements, compounds, and all about the mixture. That's it. These three we will study in the next chapter. So just note it down first and then we will talk one by one about the chapter. ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा. अब हम लोग जल्दी से इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में. पहले यही समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन क्रिएट करेंगे. बच्चों, प्योर सब्सटेंस का मतलब जैसा कि आप समझते हैं वैसा नहीं, या हम नॉर्मली जैसे अपने घरों में बोलते हैं उस तरह की भाषा नहीं होती जब हम केमिस्ट्री के बारे में ये पढ़ रहे होते हैं. प्योर सब्सटेंस इन द केमिस्ट्री, इट मीन्स दैट दोज सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. एक तरह के पार्टिकल से जो बना हुआ है. इट मीन्स वी कैन से the composition is the same kind of particles. So I can define those substances which are made up of, those substances which are made up of same kind of particles are called the pure substance. Okay, pure substance का दो क्लासिफिकेशन है, elements and compounds. So if I have to define the element, अगर मुझे element define करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो देखो बच्चों, बहुत इजी और बहुत थोड़े से में आप समझ सकते हैं. एलिमेंट्स किसके अंडर में आ रहा है? प्योर सब्सटेंस के अंदर में. तो आई कैन से द एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस and which are made up of same kind of particles.
सिर्फ ध्यान देना है कि एलिमेंट्स में एक टर्म यूज होता है एटम्स। मैं इसको डिफाइन करूंगा ताकि हम इसको नोट कर सकें। तो अगर मुझे एलिमेंट्स को डिफाइन करना हो तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, बात करते हैं। मिक्सचर को मैं मिटाता हूं ताकि मैं यहां सारी चीजों को नोट कर पाऊं, और अभी हम लोग फिलहाल प्योर सब्सटेंस और इनके बारे में बात करेंगे। अगर ये स्केच डायग्राम आपको याद है तो आप कोई भी डेफिनेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सो बच्चों, बहुत जरूरी है आप इन सबको अपने लिए ये डायग्राम को नोट कर लें। ओके, बात करते हैं। अगर मुझे बात कर रहा हूं, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग नोट करते चलेंगे। प्योर सब्सटेंस डेफिनेशन यहां से आप नोट कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस लिख के डेफिनेशन नोट कीजिए। एलिमेंट्स में आते हैं और आप चेक करिए कि क्या आपको डेफिनेशंस याद हो रहे हैं या नहीं। आर यू कैपेबल ऑफ लर्निंग द डेफिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड सो ऑन। सो इफ आई हैव टू डिफाइन द एलिमेंट्स, हाउ कैन आई डिफाइन? Elements are the pure substance which are made up of same kind of atoms. So I can say elements are the pure substance which are made up of same kind of atoms। बस सिर्फ अंतर ध्यान देना है बच्चों। जब कोई सब्सटेंस होगा तो उसमें पार्टिकल्स लग जाएंगे, एलिमेंट रहेगा तो वहां एटम्स लगाएंगे, और कोई डेफिनेशन इसमें ध्यान देने की जरूरत है। एग्जांपल क्या है? बहुत सारे एग्जांपल जो आप जानते हैं वो सारे चीज लिख सकते हैं। लाइक एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा? 118 एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास रहते हैं, वो एलिमेंट्स सारे आज के समय में आप इस एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। जैसे क्या है? कार्बन है, कार्बन को आप डिनोट करना चाहते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं। नाइट्रोजन, एन से, एन। एल्यूमिनियम को आप किससे डिनोट कर सकते हैं? एल से। गोल्ड एयू से। सिल्वर एजी से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। चलिए, अब कंपाउंड्स में ध्यान दीजिए। कंपाउंड्स को डेफिनेशंस में हम क्या क्रिएट करेंगे? देखो, सेम वही चीज, कंपाउंड भी तो प्योर सब्सटेंस है, मगर ध्यान क्या देना है? कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स की जगह हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जल्दी से नोट करिए इसको। एग्जांपल में हम डाल सकते हैं H2O जिसको हम वाटर कहते हैं, CH4 मीथेन कह सकते हैं, ठीक है, NH3 अमोनिया कह सकते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? आपके कंपाउंड्स के रूप में हम बोल सकते हैं। जस्ट नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। एक खास बात यहां देखना है कि अब इस क्लास 9th में जब आप आ चुके हैं तो हमारे पास कंपाउंड्स को लेकर और बहुत सारे डेफिनेशंस क्रिएट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस कंपाउंड्स के डेफिनेशंस को भी और अच्छे से समझ सकें। तो देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम और इसके बारे में समझ सकें। यहां पर एक चीज और ध्यान दे दो बच्चों, थोड़ा सा। जब मैं कंपाउंड्स की तरफ जाऊं इससे पहले कि मैं थोड़े एलिमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लूं। एलिमेंट में आप देख सकते हो कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स। मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स। तो आपको एग्जांपल मालूम होना चाहिए विच वन इज मेटल, विच वन इज मेटलॉइड्स, विच वन इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल में कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एग्जांपल आ जाएंगे नॉन मेटल्स के। मेटलॉइड्स में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे आपके मेटलॉइड्स के। जी ऐसा ही मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम। ओके, फुल नेम मालूम ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, मेटल्स में जब हम बात करते हैं तो मेटल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? लाइक एल्यूमिनियम, आयरन का Fe होता है, मालूम है सबको। ओके, सिल्वर, गोल्ड के लिए Au कर देंगे, सिल्वर के लिए Ag कर देंगे, मरकरी Hg कर देंगे। ये सारे जो है वो मेटल्स में। तो बच्चों, आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के एग्जांपल भी सेपरेटली मालूम होने चाहिए। वैसे जब आप 9 में आ चुके हैं इसका मतलब आपने 8 में वो चीज पढ़ाई कर ली है, तो बहुत अच्छे से उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें आती होंगी। बच्चों, जो कंपाउंड्स का डेफिनेशन है इसको हम अलग तरीके से कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स का एक डेफिनेशन हम और एक क्रिएट कर सकते हैं। कैसे हम क्रिएट करें? ये तो हो गया वैसा डेफिनेशन जो हम क्लास 6-7 में पढ़ते हैं। अभी जो 9 में पढ़ना है उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contains the same element, always contain the same element
combine together in a fixed ratio by their mass. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जब कंपाउंड्स का डेफिनेशन हो तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी, लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो छोटे बच्चों को समझाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन चूंकि आप 9 में हैं तो आपको ये डेफिनेशन जरूरी है देना, ताकि आपको ये डेफिनेशन इसलिए जरूरी है ताकि जब हम जैसे जैसे इस सिलेबस को प्रोसीड करेंगे आपको ये डेफिनेशन बहुत काम करने वाला है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड अ मिक्सचर, उस डेफिनेशन को लेकर हम इतना क्लियर नहीं हो पाएंगे जितना कि इस डेफिनेशन से। अब यहां समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं H2O। ओके, एक खास बात, आप जब भी ये डेफिनेशंस याद कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपको कम से कम एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक याद होना चाहिए। अगर आप 1 to 20 तक याद किए हुए हैं तो आपके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि ये सारा चीज आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या याद करना है? उसका एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां पर क्या दिखा है? मास के बारे में हम क्या खास बात करते हैं? जैसे मान लो यहां पर H2O है, यहां बोल रहा है कि ये कंपाउंड है, कैसे हम बताएंगे? इट ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, मतलब H2O। जब भी मैं वाटर बोलूंगा, वाटर कहीं का भी हो, चाहे मेरे घर का हो या मेरे स्कूल का हो या मेरे कोचिंग का हो, हमेशा उस वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। उसके अलावा वाटर का फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता। चाहे बारिश का पानी हो, पॉन्ड्स का पानी हो, लेक्स का पानी हो, इवन जो आपका गटर है वहां का पानी हो, फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम, दैट इज H2O। शर्त यह है कि किसी में प्योरिटी होती है और किसी में प्योरिटी नहीं होती, 11th लैंग्वेज में। यानी वाटर का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। ओके, अब अगर वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है वो फिक्स्ड हैं, वो कभी बदलते नहीं है। ऐसा नहीं कि बारिश का पानी हो रहा है तो उसका फॉर्मूला कुछ और हो गया, नदी का पानी बह रहा है तो उसका फॉर्मूला कुछ और हो गया, नहीं, सबका फॉर्मूला H2O ही होगा। यानी ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट बट दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देम। उनका जो रेशियो है मास के हिसाब से वो फिक्स्ड है। तो बच्चों देखो पहले यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ है एलिमेंट H और O, ठीक है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर, और मैं यहां लिख रहा हूं एटॉमिक मास नंबर जिसको बोल सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का यहां 1, यहां भी 1 नॉर्मली लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। ठीक है, ये याद रखना है। ये आपको तब याद होगा जब आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होगा। इसके लिए मेरा एक वीडियोस है, लर्निंग ट्रिक्स फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आप नोट कर सकते हैं। मैंने उसमें पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि उस वीडियोस में हम कैसे ये सारी चीजों को याद कर सकते हैं। तो अभी आप ये समझो कि एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर एटॉमिक मास 1, तो यहां पर मास है, मतलब मुझे इन चीजों का काम है। आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है तो इससे आप एटॉमिक मास आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो क्या है, H2O है। अब आप खुद सोचो H कितना है, यहाँ 2 है, मतलब H का जो मास होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो H का मास कितना है 1, मतलब 1 into 2 दैट इज 2। ओके, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1, यानी ऑक्सीजन इंटू 1 दैट इज ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो 16 इंटू 1 दैट इज 16। अब इसका क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, मतलब H रेशियो O। H का कितना आया 2 रेशियो 16, काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा, यानी 1:8 इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसमें, कौन से मॉलिक्यूल में, H2O के मॉलिक्यूल में। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको? वेरी इजी, जल्दी से इसको नोट करिए ताकि आप इसको ये देख सकें। बच्चों एक खास बात है, आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, H2O, CH4, NH3, इन सब का हम कैसे याद करें। तो मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूं और उसके हिसाब से हम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, एक कंपाउंड्स में जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनका मास हम कैसे निकाल सकते हैं। मिटा दें इसको, चलिए देखिए। जहां भी आपको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कौन से जगह पर स्किप कर रहा हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं कोशिश करूं। तो देखिए बच्चों एक खास बात,
मैं आपको यहाँ एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं और यहाँ पर एटॉमिक मास। बच्चों आपको जब भी कंपाउंड्स का काम रहेगा वो आपको एटॉमिक मास से रिलेटेड है। और यहां पर मैं एलिमेंट्स लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। और आप क्लास 9 में 20 तक का काम हो जाता है। ये जरूरी है याद रखना बच्चों, ये याद नहीं होगा तो चैप्टर 3 का मोल कंसेप्ट नहीं बनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है इसको याद कर लेना, अभी याद कर लेना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आपको अच्छे से सारे मार्क्स आने लगे तो इतना कम से कम क्लास 10 तक आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 जो है वो होता है हाइड्रोजन का, उसका मास भी हम 1 ही काउंट करते हैं। 2 जो होता है वो होता है हीलियम, He। देखना बच्चों एक कैपिटल एक स्मॉल, ध्यान देना है। इसका मास होता है, इसका मास हम थोड़ा बाद में लिखेंगे, 4 में लिख देता हूं, बाद में बात करेंगे इसे। लिथियम। 4 होता है बेरिलियम, 5 होता है बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम। इसका सिंबल देखना बच्चों। 13 आपका होता है बच्चों एल्यूमिनियम, 14 होता है सिलिकॉन, 15 होता है फास्फोरस, 16 होता है सल्फर, 17 होता है क्लोरीन। बच्चों ध्यान देना, C कैपिटल L स्मॉल, ओके। 18 होता है बच्चों आर्गन, 19 होता है पोटेशियम और 20 होता है कैल्शियम। बच्चों ध्यान देना, K मतलब पोटेशियम। मैं यहाँ कहां लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं, बाकी मास इसके बगल में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोटेशियम है, K मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम, ओके। जल्दी से नोट कीजिए इसको, ओके। अब बच्चों एक खास बात, अब मुझे मास नंबर याद करना नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि उसका मास नंबर एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। एवरेज, आई एम नॉट टेलिंग कि हमेशा ये मास सही होते हैं, मगर 20 तक में ये काम चल जाएगा और हो जाता है। आपको क्या करना है, सिर्फ 3 को एक्सेप्शन रखो, HNCl, ये याद रखना, ये 3। H कहां गया, 1 का 1 होता है, 1 का 1। N का देखो, N 7 है, इसका 7 और इसका मास नंबर 14 होगा। क्लोरीन का देखो 17 है इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर 35.5। सिर्फ ये 3 का अलग रहता है, बाकी सबका कंसेप्ट ये है कि जो आपका ऑड एटॉमिक नंबर है, ऑड मतलब जैसे 1 को छोड़कर है ना, 3 से, 3 इज ऑड, 5 7 ऐसा, जिसमें ऑड रहेगा उसको हम डबल कर देंगे और +1 कर देंगे। जिसमें आपका इवन एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक नंबर जिसका इवन, उसको सिर्फ हम डबल कर देंगे। चेक करते हैं, देखो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या है, 2 क्या है, इवन मतलब जो 2 के टेबल में आता हो, 2 से कट जाता हो, 2 से डिवाइड हो जाता हो। यहाँ 2 है, हीलियम का 2, हीलियम ये एटॉमिक नंबर 2, इट इज एन इवन नंबर। इवन में क्या करेंगे, इंटू 2, तो 2 into 2 4, आंसर 4 इज द मास नंबर। 3 देखो, 3 क्या है मेरा, 3 क्या है, ऑड है, ऑड में क्या करने बोले, इंटू 2 + 1, 3 2 6 + 1 7, मतलब लिथियम का 7 हो गया। 4 बेरिलियम का कितना होता है, 4 इज एन इवन नंबर, 4 2 8। 5 है, 5 2 10 + 1 11। यहां देखो 6 मतलब कार्बन का कितना, 12। 7 देखो, अब देखो बच्चों 7 आ गया। ये एक्सेप्शन याद रखना, गलती नहीं होना चाहिए। अब आपके हिसाब से होना चाहिए था 7 इज एन ऑड में डबल +1, 7 2 14 + 1 15 होता है, लेकिन बच्चों ये 14 है। एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब ये याद रखना है, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बुक्स में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो कोई जरूरत ही नहीं, आप ये सारा चीज आपको याद है, आप सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करो और ये एक्सेप्शन याद करो, और ये फॉर्मूला मालूम ही है सबको, जहां ऑड वहां डबल +1, जहां इवन वहां सिर्फ इंटू 2। चलो देखो 8 का देखो 8 इज एन इवन, 8 2 16। 9 का 9 9 18 + 1 19। नियॉन का 10 10 2 20। सोडियम का 11 का 11 इज एन ऑड, इंटू 2 22 + 1 23। मैग्नीशियम का 24। एल्यूमिनियम का 13 है, 13 2 26 + 1 27, इवन ऑड है ना इसलिए। 14 देखो इवन है, इवन का डबल कर देंगे बच्चों। 15 देखो ऑड हो गया, इंटू 2 + 1 30 and +1 31। 16 2 32, तो 32 आप कर दो। Cl का देखो बच्चों एक्सेप्शन केस 35.5 याद रखना है, ये वाला आप ऐसे घेर लो, पहला वाला HNCl, ये एक्सेप्शन याद रखना है इन तीनों का। 18 का देखो 18 इज एन इवन, 18 2 36। 19 का देखो पोटेशियम का 38 + 1 39। 20 का 40। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जिस तरह मैंने इसका रेशियो निकाला, उस तरह NH3 में
N और H का रेशियो कितना है, CH4 में C और H का रेशियो कितना है। अभी आप सिर्फ ये निकाल के देखिए, पहले वीडियो में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही बताया हूं ताकि आप कैसे याद कर सकें। अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे that how we can differentiate between the compounds and the mixture, और किस तरह हम इन सब चीजों को उनके साथ रिलेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिसके चलते आप बहुत अच्छे से अपने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, जल्दी से इन 2 क्वेश्चंस को आप नोट करके कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो क्या है। जिन बच्चों को ये याद करने में दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, वहां से वो लर्निंग ट्रिक्स फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय आओ साइंस पढ़ें आप टाइप कर सकते हैं और वहां से आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।